خطبہ نمبر 1۔ تخلیق کائنات، تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، انتخاب انبیاء کرام علیہ السلام، بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور احکام شریعہ اور ذکر حج بیت اللہ کی عظمت کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے حق کو کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات، نہ مقررہ وقت ہے اور نہ آخری مدت۔ اس نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے اور پھر اپنی رحمت ہی سے ہوائیں چلائی ہیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا ہے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے۔ تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے، اور اخلاص کا کمال زائد بر ذات صفات کی نفی ہے کہ صفت کا مفہوم خود ہی گواہ ہے کہ وہ موصوف سے الگ کوئی شے ہے، اور موصوف کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ صفت سے جداگانہ کوئی ذات ہے۔ اس کے لیے الگ سے صفات کا اثبات ایک شریک کا اثبات ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ذات کا تعدد ہے، اور اس تعدد کا مقصد اس کے لیے اجزاء کا عقیدہ ہے، اور اجزاء کا عقیدہ صرف جہالت ہے، معرفت نہیں ہے۔ اور جو بے معرفت ہو گیا اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا، اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے ایک سمت میں محدود کر دیا، اور جس نے محدود کر دیا اس نے اسے گنتی کا ایک شمار کر لیا جو سراسر خلاف توحید ذات ہے۔ جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی کے ضمن میں قرار دے دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس کے اوپر قائم ہے اس نے نیچے کا علاقہ خالی کرا لیا۔ اس کی ہستی حادث نہیں ہے اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں، اور ہر شے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پر نہیں۔ وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کے ذریعے نہیں، اور وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب دیکھی جانے والی مخلوق کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، اور اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جس کو پا کر انس محسوس کرے اور کھو کر پریشان ہو جانے کا احساس کرے۔ تخلیق کائنات۔ اس نے مخلوقات کو از غیب ایجاد کیا اور ان کی تخلیق کی ابتدا کی، بغیر کسی فکر کی جولانی کے، بغیر کسی تجربے سے فائدہ اٹھائے ہوئے یا حرکت کی ایجاد کیے ہوئے یا نفس کے افکار کی الجھن میں پڑے ہوئے۔ تمام اشیاء کو ان کے اوقات کے حوالے کر دیا اور پھر ان کے اختلافات میں تناسب پیدا کر دیا۔ سب کی طبیعتیں مقرر کر دیں اور پھر انہیں شکلیں عطا کر دیں۔ اسے یہ تمام باتیں ایجاد کرنے سے پہلے سے معلوم تھیں، اور ان کی حدود اور ان کی انتہا کو خوب جانتا تھا۔ اسے ہر شے کے ذاتی اطراف کا بھی علم تھا، اور اس کے ساتھ شامل ہو جانے والی اشیاء کا بھی علم تھا۔ اس کے بعد اس نے فضا کی وسعتیں، اس کے اطراف، اکناف اور ہواؤں کے طبقات ایجاد کیے، اور ان کے درمیان وہ پانی بہا دیا جس کی لہروں میں تلاطم تھا اور جس کی موجیں تہ بتہ تھیں، اور اسے ایک تیز و تند ہوا کے کاندھے پر لاد دیا، اور پھر ہوا کو الٹنے پلٹنے اور روک کر رکھنے کا حکم دے دیا، اور اس کی حدوں کو پانی کی حدوں سے یوں ملا دیا کہ نیچے ہوا کی وسعتیں تھیں اور اوپر پانی کا تلاطم۔ اس کے بعد ایک اور ہوا ایجاد کی جس کی حرکت میں کوئی تولیدی صلاحیت نہیں تھی، اور اسے مرکز پر روک کر اس کے جھونکوں کو تیز کر دیا اور اس کے میدان کو وسیع تر بنا دیا، اور پھر اسے حکم دیا کہ اس بحر زخار کو مت ڈالے اور موجوں کو الٹ پلٹ کر دے۔ چنانچہ اس نے سارے پانی کو ایک مشکیزے کی طرح مت ڈالا اور اسے فضائے بسیط میں اس طرح لے کر چلی کہ اول کو آخر پر الٹ دیا اور ساکن کو متحرک پر پلٹ دیا، اور اس کے نتیجے میں پانی کی ایک سطح بلند ہو گئی اور اس کے اوپر ایک جھاگ کی تہ بن گئی۔ پھر اس جھاگ کو پھیلی ہوئی ہوا اور کھلی ہوئی فضا میں بلند کر دیا، اور اس سے 7 آسمان پیدا کر دیے جس کی نچلی سطح ایک ٹھہری ہوئی موج کی طرح تھی، اور اوپر کا حصہ ایک محفوظ سقف اور بلند عمارت کی مانند تھا۔ نہ اس کا کوئی ستون تھا جو سہارا دے سکے اور نہ کوئی بندھن تھا جو منظم کر سکے۔ پھر ان آسمانوں کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ان میں تابندہ نجوم کی روشنی پھیلا دی، اور ان کے درمیان ایک ذوفگن چراغ اور ایک روشن ماہتاب رواں کر دیا جس کی حرکت ایک گھومنے والے فرق اور ایک متحرک چھت اور جنبش کرنے والی تختی میں تھی۔
मलाइका की खिलकत। फिर उसने बुलंद तरीन आसमानों के दरमियान शिकाफ पैदा किए और उन्हें तरह तरह के फरिश्तों से भर दिया, जिनमें से बाज सजदे में हैं तो रुकू की नौबत नहीं आती है, और बाज रुकू में हैं तो सर नहीं उठाते हैं, और बाज सफ बांधे हुए हैं तो अपनी जगह से हरकत नहीं करते हैं, बाज मशगूल तस्बीह हैं तो खस्ता हाल नहीं होते हैं। सब के सब वो हैं कि ना उनकी आंखों पर नींद का गलबा होता है और ना अक्लों पर सहू निस्यान का, न बदन में सुस्ती पैदा होती है और न दिमाग में निस्यान की गफलत। उनमें से बाज को वही का अमीन और रसूलों की तरफ कुदरत की जबान बनाया गया है, जो उसके फैसलों और अहकाम को बराबर लाते रहते हैं, और कुछ उसके बंदों के मुहाफिज और जन्नत के दरवाजों के दरबान हैं, और बाज वो भी हैं जिनके कदम जमीन के आखिरी तबके में साबित हैं और गर्दनें बुलंद तरीन आसमानों से भी बाहर निकली हुई हैं। उनके अतराफ बदन अत्तार आलम से वसी तर हैं और उनके कांधे पाया हाय अर्श के उठाने के काबिल हैं। उनकी निगाहें अर्श इलाही के सामने झुकी हुई हैं और वो उसके नीचे परों को समेटे हुए हैं। उनके और दीगर मखलूकात के दरमियान इज्जत के हिजाब और कुदरत के पर्दे हायल हैं। वो अपने परवरदिगार के बारे में शक्ल सूरत का तसव्वुर भी नहीं करते हैं और ना उसके हक में मखलूकात की सिफात को जारी करते हैं। वो न उसे मकान में महदूद करते हैं और न उसकी तरफ अशबाह व नज़ायर से इशारा करते हैं। तख्लीक़े जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की कैफियत। उसके बाद परवरदिगार ने जमीन के सख्त और नरम और शोर शीरी हिस्सों से खाक को जमा किया और उसे पानी से इस कदर भिगोया कि बिल्कुल खालिस हो गई, और फिर तरी में इस कदर गूंधा कि लेसदार बन गई, और उससे एक ऐसी सूरत बनाई जिसमें मोड़ भी थे और जोड़ भी, आज़ा भी थे और जोड़ बंद भी। फिर उसे इस कदर सुखाया कि मजबूत हो गई और इस कदर सख्त किया कि खनखनाने लगी। और ये सूरत हाल एक वक्त मुअय्यन और मुद्दत खास तक बरकरार रही, जिसके बाद उसमें मालिक ने अपनी रूह कमाल फूंक दी और उसे ऐसा इंसान बना दिया जिसमें ज़हन की जौलानियां भी थीं और फिक्र के तसर्रुफात भी, काम करने वाले आज़ा व जवारेह भी थे और हरकत करने वाले अदवात व आलात भी, हक को बातिल में फर्क करने वाली मारिफत भी थी और मुख्तलिफ जायकों, खुशबुओं, रंग और रुगन में तमीज करने की सलाहियत भी। उसे मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी से बनाया गया जिसमें मुवाफिक अज्जा भी पाए जाते थे और मुतजाद अनासिर भी, और गर्मी, सर्दी, तरी, खुश्की जैसी कैफियत भी। फिर परवरदिगार ने मलाइका से मुतालबा किया कि उसकी अमानत को वापस करें और उसकी माहूदा वसीयत पर अमल करें, यानी उस मखलूक के सामने सर झुका दें और उसकी करामत का इकरार कर लें। चुनाचे उसने साफ साफ ऐलान कर दिया कि आदम को सजदा करो, और सबने सजदा भी कर लिया सिवाय इब्लीस के कि उसे तासुब ने घेर लिया और बदबख्ती गालिब आ गई, और उसने आग की खिलकत को वजह इज्जत और खाक की खिलकत को वजह जिल्लत करार दे दिया। मगर परवरदिगार ने उसे गज़ब इलाही के मुकम्मल इस्तेहकाक, आजमाइश की तकमील और अपने वादे को पूरा करने के लिए ये कहकर मोहलत दे दी कि तुझे रोजे वक्त मालूम तक के लिए मोहलत दी जा रही है। उसके बाद परवरदिगार ने आदम अलैहिस्सलाम को एक ऐसे घर में साकिन कर दिया जहां की जिंदगी खुशगवार और मामून व महफूज थी, और फिर उन्हें इब्लीस और उसकी अदावत से भी बाखबर कर दिया। लेकिन दुश्मन ने उनके जन्नत के क़याम और नेक बंदों की रफाकत से जलकर उन्हें धोखा दे दिया, और उन्होंने भी अपने यकीन मोहकम को शक और अज़्म मुस्तहकम को कमजोरी के हाथों फरोख्त कर दिया, और इस तरह मसरत के बदले खौफ को ले लिया और इब्लीस के कहने में आकर निदामत का सामान फराहम कर लिया। फिर परवरदिगार ने उनके लिए तौबा का सामान फराहम कर दिया और अपने कलिमात रहमत की तलकीन कर दी, और उनसे जन्नत में वापसी का वादा करके उन्हें आजमाइश की दुनिया में उतार दिया जहां नस्लों का सिलसिला कायम होने वाला था। अंबिया इकराम का इंतखाब। उसके बाद उसने उनकी औलाद में से उन अंबिया का इंतखाब किया जिनसे वही की हिफाजत और पैगाम की तबलीग की अमानत का अहद लिया, इसलिए कि आखिरी मखलूकात ने अहद इलाही को तब्दील कर दिया था, उसके हक से नावाकिफ हो गए थे, उसके साथ दूसरे खुदा बना लिए थे, और शैतान ने उन्हें मारिफत की राह से हटाकर इबादत से यकसर जुदा कर दिया था। परवरदिगार ने उनके दरमियान रसूल भेजे, अंबिया का तसलसल कायम किया ताकि वो उनसे फितरत की अमानत को वापस लें और उन्हें भूली हुई नेमते परवरदिगार को याद दिलाएं। तबलीग के जरिए इन पर इत्माम हुज्जत करें और इनकी अक्ल के दफीनों को बाहर लाएं।
और इन्हें कुदरत इलाही की निशानियां दिखलाएं। ये सरों पर बुलंद तरीन छत, ये जेर कदम गहवारा, ये जिंदगी के असबाब, ये फना करने वाली अजल, ये बूढ़ा बना देने वाले अमराज और ये पै दर पै पेश आने वाले हादसात। उसने कभी अपनी मखलूकात को नबी मुरसल या किताब मुंजल या हुज्जत लाजिम या तरीक़े वाज़े से महरूम नहीं रखा है। ऐसे रसूल भेजे हैं जिन्हें न अदद की किल्लत काम से रोक सकती थी और न झुटलाने वालों की कसरत। उनमें जो पहले था उसे बाद वाले का हाल मालूम था, और जो बाद में आया उसे पहले वाले ने पहचानवा दिया था। और यूं ही सदियां गुजरती रहीं और जमाने बीतते रहे, आबाओ अजदाद जाते रहे और औलाद व आफाद आते रहे। बेसते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां तक कि मालिक ने अपने वादे को पूरा करने और अपनी नबूवत को मुकम्मल करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया, जिनके बारे में अंबिया से अहद लिया जा चुका था और जिनकी अलामतें मशहूर और विलादत मसऊद व मुबारक थी। उस वक्त अहले ज़मीन मुतफर्रिक मज़ाहिब, मुंतशिर ख्वाहिशात और मुख्तलिफ रास्तों पर गामजन थे। कोई खुदा को मखलूकात की शबीह बता रहा था, कोई उसके नामों को बिगाड़ रहा था और कोई दूसरे खुदा का इशारा दे रहा था। मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सबको गुमराही से हिदायत दी और जहालत से बाहर निकाल लिया। उसके बाद उसने आपकी मुलाकात को पसंद किया और इनामात से नवाजने के लिए इस दारे दुनिया से बुलंद कर लिया। आपको मसाइब से निजात दिला दी और निहायत एहतराम से अपनी बारगाह में तलब कर लिया और उम्मत में वैसा ही इंतजाम कर दिया जैसा कि दीगर अंबिया ने किया था कि उन्होंने भी कौम को लावारिस नहीं छोड़ा था जिसके लिए कोई वाज़ेह रास्ता और मुस्तहकम निशान न हो। कुरान और अहकाम शरइया। उन्होंने तुम्हारे दरमियान तुम्हारे परवरदिगार की किताब को छोड़ा है जिसके हलाल व हराम, फराइज व फजाइल, नासिक व मनसूख, रुखसत व अजीमत, खास व आम, इबरत व अमसाल, मुतलक व मुक़य्यद, मुहकम व मुतशाबिह सबको वाज़ेह कर दिया था। मुजमल की तफसीर कर दी थी, गुत्थियों को सुलझा दिया था। इसमें बाज आयात हैं जिनके इल्म का अहद लिया गया है और बाज से नावाकिफियत को माफ कर दिया गया है। बाज अहकाम के फर्ज का किताब में जिक्र किया गया है और सुन्नत से उनके मंसूख होने का इल्म हासिल हुआ है या सुन्नत में उनके वजूब का जिक्र हुआ है, जबकि किताब में तर्क करने की आजादी का जिक्र था। बाज अहकाम एक वक्त में वाजिब हुए हैं और मुस्तकबिल में खत्म कर दिए गए हैं। इसके मुहर्रमात में बाज पर जहन्नुम की सजा सुनाई गई है और बाज गुनाह सगीरा हैं जिनकी बख्शिश की उम्मीद दिलाई गई है। बाज अहकाम हैं जिनका मुख्तसर भी काबिल कबूल है और ज्यादा की भी गुंजाइश पाई जाती है। जिक्र हज बैतुल्लाह। परवरदिगार ने तुम लोगों पर हज बैतुल हराम को वाजिब करार दिया है, जिसे लोगों के लिए किबला बनाया है और जहां लोग प्यासे जानवरों की तरह बेताबाना वारिद होते हैं और वैसा उन्स रखते हैं जैसे कबूतर अपने आशियाने से रखता है। हज बैतुल्लाह को मालिक ने अपनी अजमत के सामने झुकने की अलामत और अपनी इज्जत के ईकान की निशानी करार दिया है। उसने मखलूकात में से उन बंदों का इंतखाब किया है जो उसकी आवाज सुनकर लब्बैक कहते हैं और उसके कलिमात की तस्दीक करते हैं। उन्होंने अंबिया के मवाकिफ में वकूफ किया है और तवाफ अर्श करने वाले फरिश्तों का अंदाज इख्तियार किया है। ये लोग अपनी इबादत के मामले में बराबर फायदे हासिल कर रहे हैं और मगफिरत की वादागाह की तरफ तेजी से सबकत कर रहे हैं। परवरदिगार ने काबे को इस्लाम की निशानी और बेपनाह अफराद की पनाहगाह करार दिया है। इसके हज को फर्ज किया है और इसके हक को वाजिब करार दिया है। तुम्हारे ऊपर इस घर की हाजिरी को लिख दिया है और साफ ऐलान कर दिया है कि अल्लाह के लिए लोगों की जिम्मेदारी है कि उसके घर का हज करें जिसके पास भी इस राह को तय करने की इस्तिताअत पाई जाती हो।